Hello all, welcome to the Sound of Education. So this video is on ensemble technique. So basically in last video we had a detailed discussion on random forest algorithm. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हो. So basically random forest algorithm is works on the ensemble technique. So here in case of ensemble technique, we have to discuss about the bagging and boosting technique. सो बेसिकली जो अनसेंबल टेक्निक है उसमें टोटल मतलब अगर आप कंसिडर करोगे तो टोटल 3 टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर बिल्डिंग मशीन लर्निंग मॉडल. सो उसमें बैगिंग, बूस्टिंग और स्टैकिंग है, बट हियर इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैगिंग एंड बूस्टिंग. सो आपको यहाँ पे डिटेल डिफरेंस पता चलेगा कि what how the bagging technique is works and how the boosting technique is works and how we can use this technique to building a machine learning model, or how we can increase the accuracy by using this technique, right? So let's start the today's session. So as we know, this ensemble learning or ensemble technique we are using for random forest algorithm. So here random forest algorithm works on the ensemble technique, which is the progress or sorry which is the process. So let's start the today's session. So here we know this ensemble learning we are using for random forest algorithm. Here you can see the random forest algorithm works on the ensemble learning, or we can say the ensemble technique, which is a process of कंबाइनिंग द मल्टीपल क्लासीफायर. ये हमने जब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम देखा था तभी भी मैंने आपको ये कहा था कि ensemble learning or ensemble technique is nothing but the process of combining the multiple classifier. So here in this video हम वही डिस्कस करेंगे कि how this combination of multiple classifier we can use for building a machine learning model. So by using this ensemble technique, right? So to solve the complex problem and to improve the performance of the model, right? Here we are looking for the higher accuracy. So अगर हमें accuracy अच्छा चाहिए या फिर accuracy अगर higher चाहिए, performance of model, if you want the whatever model you are building, that model is performing very well or highly accurate, so we are using this type of technique to build highly accurate model, right? So here if you see this second point, so ensemble learning is a popular technique in machine learning where the multiple models are combined to improve the accuracy. Again here for improving the accuracy, multiple models are combined. नंबर ऑफ मॉडल्स बना के उन्हें अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें हायर एक्यूरेसी मिल सकता है, तो इसकी वजह से हम ये ensemble टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है. So here the third point is ensemble learning can help to reduce the overfitting, increase the accuracy and make the model more stable. So वही सारी चीज़ें हैं ये हमने जब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम देखा था. तो इफ़ यू आर यूजिंग दिस सच काइंड ऑफ टेक्निक लाइक ensemble technique like bagging and boosting, so we are reducing this overfitting condition as well as we are increasing the accuracy. Now overfitting is nothing but the error available in your machine learning model, right? You know about the bias and variance. So these are the different types of error which is available in machine learning model, and on the basis of this bias and variance the model is divided it whether the model is overfitted model or underfitted model. ये हम उसे बाइफरगेट कर सकते हैं या फिर हम उसे ये जो बायस और वेरिएंस के जो कॉम्बिनेशन के ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि मॉडल ओवरफिटेड है या अंडरफिटेड है. ये हमने जब ओवरफिटिंग एंड ओवर अंडरफिटिंग का जो वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है. सो अगर हम ये ओवरफिटिंग कंडीशन रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब अगर हम एरर रिड्यूस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी हायर मिलने ही वाली है, ठीक है. सो हियर इफ़ यू आर कंसिडरिंग अबाउट ensemble टेक्निक, सो ensemble टेक्निक has 3 type here: bagging, boosting and stacking. Now in this video we are only going to discuss about the bagging and boosting, right? So here first we'll discuss about the bagging, how the bagging technique works, and then we'll discuss about the boosting and how the boosting technique is works, right? So next is about the bagging. So first technique, or we can say the first ensemble technique is bagging.
इज ऑल्सो नोन एज अ बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन। ये जो बैगिंग टेक्निक है उसे और एक दूसरा नाम है बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन। सो अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन वर्ड किया है, सो बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन इज नथिंग बट द बैगिंग, राइट? सो हियर इन केस ऑफ बैगिंग टेक्निक, bagging is a technique where multiple models are trained on the different subset of the training data set। जो ट्रेनिंग डेटा सेट अवेलेबल है उसी में से कुछ हम नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं और वो नंबर ऑफ सबसेट यूज करके हम नंबर ऑफ मल्टीपल मॉडल जो है वो ट्रेन करते हैं, जैसे हमने रैंडम फॉरेस्ट के केस में देखा था। ठीक है, सो वो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, इन दिस टेक्निक द लार्ज डेटा सेट इज डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल सबसेट। मतलब जो लार्ज डेटा सेट आपके पास है उसे हम नंबर ऑफ सबसेट में डिवाइड करते हैं, and then each subset is used to train a separate model, and by using each subset we are training the separate model, right? So we are using this subset for training the separate model, right? Now here these models are then combined by taking the average or majority votes of the prediction made by each model। वही लास्ट जब रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम ने हमें डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मॉडल जब हम बिल्ड करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट के बेस पे हम एवरेज या फिर मेजॉरिटी वोट पे हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, now next is that these technique can help to reduce the overfitting and improve the stability and accuracy of the model if we are using such kind of technique। So by using this technique we are reducing the overfitting condition as well as we are increasing the accuracy and stability of the machine learning model, right? Now last one is a bagging technique is nothing but a bagging technique used in a random forest algorithm, extra trees, bagged decision tree। so these are the uses of bagging technique। तो इन केसेस में ये जो सारे algorithms हम बिल्ड जब करते हैं तो इन सारी केसेस में हम बैगिंग टेक्निक यूज करते हैं, राइट? So these are the some important point related to the bagging technique। Now we'll discuss how bagging technique is works। So ये जो सारे points है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि इसी point के बेस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली बैगिंग टेक्निक वर्क कैसे करता है। ठीक है, सो ये एक डायग्राम है जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ बैगिंग टेक्निक वर्क्स, राइट? सो हियर अगेन बैगिंग और वी कैन कॉल्ड एज अ बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। तो जैसे हमने पहला पॉइंट देखा कि एक डेटा सेट से कुछ हम सबसेट बनाएंगे एंड बाय यूजिंग दिस सबसेट वी कैन ट्रेन द डिफरेंट मॉडल, राइट? सो मान लो ये एक डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है जो मेन डेटा सेट होगा, तो इसमें हम नंबर ऑफ सबसेट में इस डेटा सेट को डिवाइड कर देंगे। तो मान लो ये एक सबसेट हमने बना लिया, एक दूसरा सबसेट हमने बना लिया, ये थर्ड है। तो इस तरीके से हमने ये n नंबर ऑफ हम एक डेटा सेट में से सबसेट बना सकते हैं, राइट? एंड बाय यूजिंग दिस ईच सबसेट वी कैन बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल। तो मान लो ये एक सबसेट है जो ये ट्रेनिंग डेटा में से हमने उठाया हुआ कुछ रैंडम सैंपल्स है, उसे हम यूज करके ये M1 मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, उसी में से सेकंड सबसेट उठा के ये M2 मॉडल ट्रेन करेंगे, थर्ड सबसेट उठा के M3 मॉडल ट्रेन करेंगे, फोर्थ सबसेट उठा के M4 मॉडल ट्रेन करेंगे। ऐसे हम एक ट्रेनिंग डेटा से नंबर ऑफ सबसेट बना के n नंबर ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इस केस में हमने 4 मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड कर दिए। ठीक है, तो ये 4 मशीन लर्निंग मॉडल का हर एक मॉडल के लिए एक आउटपुट आपको मिलेगा। सो मान लो ये अगर क्लासिफिकेशन के केस में यूज़ कर रहे हैं तो आपको मान लो ए कैटेगरी का मिला, इसका आउटपुट ए, इसका भी आउटपुट ए, इसका बी मिला और इसका ए मिला, राइट? सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस सेम टेक्निक फॉर रिग्रेशन, तो रिग्रेशन की केस में आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिलता है। मान लो सेम एग्जांपल मैं लूँगा जो मैंने लास्ट रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के टाइप लिया था कि हम फ्लैट प्राइस प्रेडिक्ट करें, तो इसमें आपको इसका आउटपुट मिला पहले मॉडल का हमें 50 लाख, सेकेंड मॉडल का रिग्रेशन की केस में हमें आउटपुट मिला 54 लाख, इसमें आपको मिला 35 लाख और इसमें आपको मिला मान लो 50 लाख फिर से। ठीक है, तो अगर आप ये टेक्निक
क्लासिफिकेशन की केस में यूज़ कर रहे हो तो हम मैक्सिमम वोटिंग यूज़ करते हैं। तो अभी जैसे ए और बी, तो इसमें से 4 मॉडल में से 3 जो मॉडल है वो हमें ए प्रेडिक्शन दे रहे हैं और जो एक मॉडल है वो बी प्रेडिक्शन दे रहा है, तो मैक्सिमम वोटिंग इज़ फॉर ए कैटेगरी। सो हम फाइनल प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम वोटिंग करेंगे। ठीक है। नाउ फिर अगर यही सेम अल्गोरिदम, यही सेम टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो रिग्रेशन की केस में, तो रिग्रेशन की केस में हम एवरेजिंग करते हैं। एवरेजिंग मतलब हम मीन निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 50 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉडल दैट इज 4, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका फाइनल प्रेडिक्शन होगा। सो इस तरीके से ये जो बैगिंग टेक्निक है ये वर्क करता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बैगिंग टेक्निक, और वी कैन से द बूट स्ट्रैप एग्रीगेशन एंड वर्किंग ऑफ दिस बैगिंग टेक्निक। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? So this is about the bagging technique. Now we'll discuss about the boosting technique, how boosting technique work, right? So boosting की केस में बेसिकली क्या होता है ना कि boosting is a technique where multiple weak models are combined to form a strong model, right? Strong model मतलब क्या? ऐसा मॉडल बनाने की हम कोशिश करते हैं कि उसका एक्यूरेसी जो होगा वो हाई होगा। सो अगर हमें इस तरीके का जो फाइनल मॉडल है जिसका एक्यूरेसी नियर अबाउट 100% या फिर हाई एक्यूरेसी होगा, तो उसके लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ वीक मॉडल्स बनाते हैं और बेस्ड ऑन दिस नंबर ऑफ वीक मॉडल वी आर ट्राई टू बिल्ड अ फाइनल स्ट्रॉन्गर मॉडल, राइट? वो कैसे होगा वो जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा तब आपको वो डिटेल समझ में आ जाएगा, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज in this technique multiple models are trained sequentially and each model try to improve on the error made by the previous model। मतलब इस केस में हम नंबर ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल तो बिल्ड करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस ये रहेगा कि आप जो ये पहला मॉडल जब आपने बिल्ड कर लिया, तो जब आप सेकंड मॉडल बिल्ड करोगे ना, तो उसमें जो पहले मॉडल में जो एरर है वो एरर के बेस के ऊपर आप सेकंड मॉडल बिल्ड करोगे, राइट? सेकंड मॉडल बिल्ड आपने जब कर लिया, जब थर्ड मॉडल के टाइप आप जाओगे तो सेकंड मॉडल में जो एरर है उसके बेस पे आप थर्ड मॉडल बिल्ड करोगे। ठीक है। सो हियर यू कैन सी ट्राई टू इम्प्रूव ऑन द एरर मेड बाय द प्रीवियस मॉडल। मतलब जो प्रीवियस मॉडल ने जो एरर्स दिए, रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट दिए थे, उस रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट को कंसिडर करके हम नेक्स्ट मॉडल बिल्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द वेट of the data points are adjusted so that the misclassified points are given more weight and the correctly classified points are given as a less weight, right? So ये जब हम जब डिटेल में डायग्राम देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि जब आप मशीन लर्निंग मॉडल आप ट्रेन करते जाते हो 1 2 3, तो उसमें आप उसे वेट पॉइंट को वेट आप कंसिडर करते हो। तो जैसे अगर वो मिसक्लासिफाइड पॉइंट्स है तो उससे हम हाई वेट कंसिडर करेंगे, उसे हम हाई वेटेज देंगे, और जो करेक्टली क्लासिफाइड पॉइंट्स है उसे एज अ लेस वेटेड पॉइंट हम कंसिडर करके आगे जो आने वाला मॉडल है वो हम बिल्ड करते जाएंगे, राइट? सो उस जो सारे जो मॉडल्स है उन्हें हम वीक लर्नर कहते हैं, और बाय यूजिंग दिस मल्टीपल वीक लर्नर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस स्ट्रॉन्ग मॉडल, राइट? So here next point is this technique can help to improve the accuracy of the model by reducing the bias and variance, right? So ये same technique है कि आप accuracy increase करना चाहते हो by reducing the bias and variance। Now you know bias and variance is nothing but the errors। So अगर हम errors reduce करेंगे तो accuracy जो है वो अपने आप increase हो जाएगा, right? Now the last point is boosting algorithm is used, or we can say the different types of boosting algorithm like AdaBoost, gradient descent and XGBoost। so here gradient descent is gradient boosting is there, right? gradient descent हम जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें यूज करते हैं। सो जो बूस्टिंग के जो अल्गोरिदम्स है वो AdaBoost है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है और XGBoost है। सो ये टेक्निक के बारे में अगर आपको डिटेल देखना है तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, उसमें आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो कि हाउ AdaBoost
जो टेक्निक है वो कैसे वर्क करता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग कैसे वर्क करता है, एक्जी बूस्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द बूस्टिंग. नाउ विल सी हाउ boosting technique works exactly, right? So this is the diagram. Now you can see जो पहला पॉइंट हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेटा वी हैव टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल. सो मान लो ये हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है. तो ये ट्रेनिंग डेटा से हम पहला जो मॉडल है वो हम ट्रेन करेंगे, राइट. सो ये जब मॉडल हम ट्रेन करेंगे ना, तो आपको पता है कि हर एक मॉडल आपको कभी 100% एक्यूरेसी नहीं देगा. मॉडल में हमेशा ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि वो रॉन्गली प्रेडिक्टेड होंगे, ठीक है. सो मान लो ये जो M1 मॉडल है, इसे आपने कुछ पॉइंट्स दिए और इसने उसमें से कुछ रॉन्गली प्रेडिक्ट पॉइंट किए, ठीक है. ऐसे कुछ आपको रॉन्गली प्रेडिक्टेड मिले पॉइंट, राइट. सो जब आप नेक्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करोगे ना सेकंड, तो आप वो मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने के लिए ये जो फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल, जो प्रीवियस मशीन लर्निंग मॉडल था, जिस उसने जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड डेटा पॉइंट थे, वही आप बस यूज करोगे, राइट. सो यहाँ पे जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होंगे उन्हें वेटेज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉइंट. तो जो करेक्टेड पॉइंट है उनको वेटेज कम होगा और उन जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड है उनको वेटेज ज़्यादा होगा. और जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है, जो डेटा है, वही हम सेकेंड मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे. यू कैन सी हियर रॉन्गली प्रेडिक्टेड डेटा फ्रॉम M1. मतलब यहाँ पे ऐसा डाटा होगा कि ये जो M1 मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया है. जैसे मान लो अगर आपको इमेज डिटेक्शन करना है, मान लो आपने उसे कैट का इमेज प्रोवाइड किया और उसने बोला कि ये डॉग है, तो रॉन्गली प्रेडिक्ट हो गया, ठीक है. आपने उसे किसी मेल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और वो मशीन लर्निंग मॉडल ने आपको बताया कि ये फीमेल है, ठीक है, तो ये रॉन्गली प्रेडिक्टेड हो गया. तो ये जो सारा रॉन्गली प्रेडिक्टेड डाटा होगा ये हम सेकेंड मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करेंगे और उसके बेस के ऊपर ये सेकेंड मॉडल ट्रेन होगा. फिर से हम इसे इसका आउटपुट देखेंगे, फिर से हम इसे इवेल्युएट करेंगे और फिर से ये जो जो M2 मॉडल होगा उसमें भी कुछ रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होंगे, ठीक है. उसमें कुछ रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होंगे. तो वो रॉन्गली प्रेडिक्टेड जो पॉइंट्स होंगे, जो डेटा होगा, वो डेटा यूज करके हम थर्ड मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करेंगे. थर्ड मशीन लर्निंग मॉडल के केस में भी कुछ रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होंगे, राइट. वही सेम पॉइंट यूज करके हम फोर्थ करेंगे, फोर्थ की केस में भी सेम होगा, ठीक है. ऐसा करते करते यू कैन बिल्ड एन नंबर ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, राइट. बट जब आप नंबर ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते जाओगे ना, तो ये रॉन्गली प्रेडिक्टेड जो डेटा है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा. दैट मीन्स you are decreasing the bias and variance, you are decreasing the error. If you are decreasing the error, automatically accuracy is increases. और ये जो मशीन लर्निंग आप मॉडल बनाते जाओगे ना, इसे हम कहते हैं वीक लर्नर. ये देखो वीक लर्नर 1, 2, 3 एंड 4. एंड ऑन बेसिस ऑफ दिस मल्टीपल वीक लर्नर हम फाइनली एक स्ट्रॉन्ग लर्नर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. क्योंकि अगर आप यहाँ पे आप देखो ना, अगर आप M4 बनाओगे, मान लो यहाँ पे आपने कुछ 10,000 पॉइंट थे जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड थे. 10,000 पॉइंट आपने M2 को दिए, फिर M2 ने कुछ बोला. M2 के केस में रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट मान लो 5,000 हो गए. 5,000 आपने M3 के लिए दिए, यहाँ पे मान लो 2,000 हो गए, ठीक है. 2,000 के यहाँ पे दिए, यहाँ पे 1,000 हो गए, ठीक है. तो यहाँ पे नीचे जाओगे 500 हो गए. फिर ऐसा एक पॉइंट आएगा कि वहाँ पे आपका जो रॉन्गली प्रेडिक्टेड पॉइंट्स होंगे ना वो बहुत कम हो गए. तो अगर वो कम है, इसका मतलब आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ गया, राइट. सो इस तरीके से आपका जो बूस्टिंग टेक्निक है वो वर्क करता है. बाय बिल्डिंग अ मल्टीपल वीक लर्नर वी आर trying to build a strong learner on the basis of this multiple weak learner. So this is about the bagging and boosting technique, or we can say this is about the ensemble technique, right. So basically इसी तरीके से हम मल्टीपल क्लासीफायर और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल क्लासीफायर हम बिल्ड करते जाते हैं टू इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी और टू रिडक्शन ऑफ ओवरफिटिंग कंडीशन एज वेल एज टू रिडक्शन ऑफ एरर. सो वही था कि आपका जो एंसेम्बल टेक्निक इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मल्टीपल क्लासीफायर. सो बाय यूजिंग दिस बैगिंग एंड बूस्टिंग टेक्निक
वी आर ट्राई टू इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी ऑफ दैट मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है बैगिंग और बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपका अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हो, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।